Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, we are doing organic chemistry, and in that, we are doing some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 5th. बच्चों, today's subtopic is general rules for IUPAC nomenclature of the organic compounds. So since let's start with the today's subtopic, that is general rules for IUPAC nomenclature of organic compounds. बच्चों, ये जो आपका IUPAC system है, that is very rational and widely used system of the nomenclature in organic chemistry. बच्चों, IUPAC नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. वन इज योर वर्ड रूट, अनदर वन suffix एंड प्रीफिक्स. बच्चों, कोई भी IUPAC नेम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट विल हैव these 3 parts: word root, suffix and prefix. Now, what is word root? बच्चों, word root जो है that is the basic unit of the name and it denotes the number of carbon atoms present in the parent chain. parent chain में कितने कार्बन एटम्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपका word root देगा. और बच्चों, for the chains from 1 to 4 carbon atoms, we use special word roots which are based upon the common names of the alkanes. But for the chains of 5 or more carbon atoms, we use Greek number roots. Let's say we are having the different chain lengths और उनके लिए word root क्या रहती है बेटा, उसके बारे में हम देखते हैं अभी. लेट्स से चेन लेंथ में एक ही कार्बन है, देन वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. फॉर C2 इथ, C3 prop, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 non, C10 dec, C11 undec, C12 dodec, C13 tridec and C14 tetradec. Then C15 pentadec and so on. So beta, these are the word roots which are used for the different chain lengths beta having the different number of carbon atoms. Now बेटा, suffix. बच्चों, ये जो आपका प्राइमरी suffix है that is always added to the word root. और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो आपकी कार्बन चेन है that is saturated और unsaturated. अब सैचुरेटेड कार्बन चेन कौन सी रहेगी बेटा? ऐसी कार्बन चेन जिनमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है that is saturated कार्बन चेन. और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन कौन सी रहेगी? जिस कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं बेटा, दैट इज अनसैचुरेटेड कार्बन चेन. जैसे कार्बन कार्बन लिंकेज क्या रहेगी बेटा? प्राइमरी सफिक्स हम उसके लिए क्या यूज करेंगे और उस कंपाउंड्स का जनरल नेम क्या रहेगा? लेट्स से इफ देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर, then primary suffix is your ane. General name will be your alkane. If there is a double bond between the carbon carbon atom beta, then primary suffix is your ene और जनरल नेम क्या रहेगा बेटा इनका? alkene. और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है then it's your ine. Primary suffix is your ine, YNE बेटा, then it's your alkyne. now बच्चों, अगर पेरेंट चेन में 2, 3, 4 या 4 से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो हम
वहां क्या यूज करेंगे बेटा? वी विल यूज न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, which are added to the primary suffix. For example, types of carbon chain, primary suffix, let's say general name beta. Let's say we have 2 double bond in carbon chain. Then primary suffix will be your diene. And general name will be your alkadiene. अगर कार्बन चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं बेटा, देन इट्स योर डाइआइन एंड जनरल नेम ऑफ द कंपाउंड्स विल बी योर एल्काडाइआइन. नाउ बच्चों, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड IUPAC नेम बेटा. लेट्स टेक फर्स्ट केस. लेट्स से CH3, CH2, CH2, CH3. There are the 4 carbon atoms. So word root is but. और कार्बन के बीच में यहां बेटा सिंगल बॉन्ड इज देयर, सो प्राइमरी सफिक्स विल बी योर एन. तो इन दोनों को इकट्ठा करें बेटा, तो व्हाट वी विल गेट? ब्यूटेन. नाउ लेट्स से दिस 1 2 3 वर्ड रूट इज योर prop, देन प्राइमरी सफिक्स इज योर इन. इज दैट क्लियर? देन IUPAC name will be your propene. Now let's say here we have the 2 carbon atoms. Word root is your eth, or triple bond is there between the carbon atoms. So primary suffix is your ine and IUPAC name is ethyne. Now here we have the carbon chain having 4 carbon atoms beta, और 2 position पे आपके double bonds हैं. So first of all word root for this, that is of 4 for 4 beta. Word root is but. Clear? And then primary suffix is of diene, then IUPAC name will be your butadiene. Now students, here A we are using over here beta. Is that clear? Now here extra A जो है that is added to the word root. क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी सफिक्स है बेटा यहां, that is going to begin with the consonant D, but not with the vowel. Vowel, you know, A, E, I, O, U. Is that clear? So beta, that's why A is added over here. So it's a butadiene. Now secondary suffix. Now beta secondary suffix जो है that indicate the nature of the functional group present in the organic compound. और जब हम secondary suffix add करते हैं to the primary suffix बेटा, जो आपका टर्मिनल E है प्राइमरी suffix का, और ये क्या थे? एन, इन, आइन. इनके जो E है बेटा, इसको हम क्या करते हैं? We drop it if the secondary suffix that begins with a vowel, that is A, E, I, O, U. But बेटा it is retained, इसको as it is रहने दिया जाता है अगर जो आपका secondary suffix है if that is going to begin with a consonant. और बेटा इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, so don't get confused. अभी बस इतना याद रखें कि जो आपका secondary suffix है, जब हम उनको ऐड करते हैं प्राइमरी सफिक्स के साथ, तो जो प्राइमरी सफिक्स का जो ई है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं बेटा. इफ द सेकेंडरी सफिक्स दैट बिगिंस विद द वावल, बट इसको एज इट इज रहने देते हैं बेटा अगर जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है इफ इट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट. नाउ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप बेटा, एंड देन द सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या रहेगा बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए. लेट्स से अल्कोहल्स बेटा, फंक्शनल ग्रुप OH, और सेकेंडरी सफिक्स विल बी योर ओल. देन एल्डिहाइड्स, फंक्शनल ग्रुप इज योर
CHO, secondary suffix is ol. Then ketones, C double bond O, and on either side of this we are having your carbon-carbon chains beta. Secondary suffix will be on. Carboxylic acid next beta. Functional group is COOH and secondary suffix is oic acid. Then acid anhydrides, C double bond O, O, C double bond O. And secondary suffix for this is oic anhydride. Then esters, C double bond OOR. Alkyl और suffix क्या लग जाएगा बेटा? oid. Alkyl, this is your alkyl, and इसके साथ बेटा जो भी है alkanoid rather, clear? So लेकिन suffix जो है that is oid over here. Now acid chlorides, C double bond O Cl या फिर COCl बेटा, that is oil chloride is the secondary suffix for this. Then acid amides, CONH2, इसके लिए जो secondary suffix रहेगा बेटा that is amide. You know बच्चों, acid anhydride, ester and acid chloride and acid amides, these are your derivatives of the carboxylic acid because they are derived from the carboxylic acids by replacing this OH by the different groups. Now nitriles, C triple bond N, and the secondary suffix is a nitrile. Amines beta, NH2, secondary suffix is a amine. Now बच्चों, these are some functional groups जिनके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. नाउ बेटा, जब हम सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं टू द प्राइमरी सफिक्स, जो आपका टर्मिनल ई है प्राइमरी सफिक्स का, दैट इज ड्रॉप्ड बेटा, उसको हम रिमूव कर देते हैं बेटा. जैसे एन, इन, आइन, दीज आर द प्राइमरी सफिक्सेस, इनके जो आपके ई हैं एट द एंड्स बेटा, they are removed or they are dropped. Let's say this is some organic compound beta, this is nitrile. इसमें क्या रहेगा? There are 3 carbon atoms, prop plus ane plus nitrile. So beta, IUPAC name of this compound is propane nitrile. Now if you see in this, E is not removed beta, is not dropped over here. क्यों? क्योंकि जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, that is starting with a consonant, that's why it is not dropped. So primary suffix का जो e है that is not dropped over here. Now this is a eth plus ane plus ol. eth क्यों? word root. ane क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. और ओल क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो आपका दैट इज अल्कोहल का बेटा, अल्कोहल के लिए आपका जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा दैट इज ओल. सो बेटा हियर वी हैव टू रिमूव दिस ई. क्यों? क्योंकि जो आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज स्टार्टिंग विद द वावल बेटा. हियर इज अ वावल दैट इज अ ओ. सो वी हैव टू रिमूव दिस ई. सो इट्स इथेनॉल. Now this is 1, 2, 3. Word root is a prop, then ane, then oic acid beta. Then again we have to drop this e over here beta. Then it is a propanoic acid. और क्यों हम ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज स्टार्टिंग विद द vowel beta, that is a o over here. Now beta, this is a 1, 2, 3, 3 carbon atoms are there. So word root is your prop again, then ane plus ul. Prop plus ane plus ul, that is a propanol. So beta, these were some examples जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब हम सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करते हैं टू द प्राइमरी सुफिक्स, इन सम केसेस टर्मिनल
ई जो है प्राइमरी सफिक्स का, दैट इज एलिमिनेटेड ओवर हियर। और यहां किस केस में एलिमिनेट किया बेटा हमने, दैट इज ड्रॉप्ड इन सम केसेस बेटा। और किन केसेस में हमने ड्रॉप किया, इन केस ऑफ योर दिस इथेनॉल बेटा, देन प्रोपेनोइक एसिड के केस में हमने किया और प्रोपेनल के केस में किया। और क्यों किया, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू 1993 रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपके जो लोकेंट्स है बेटा विच आर प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द पार्ट ऑफ द नेम, और ये लोकेंट्स क्या है, दे मे बी न्यूमेरिकल वैल्यूज और यू कैन से लेटर्स भी हो सकते हैं ये बेटा। सो दे मस्ट बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द पार्ट ऑफ द नेम। लाइक बेटा दिस इज अ ब्यूटाइन, ब्यूट-2-ine। नाउ हियर दिस इज अ लोकेंट। इसकी लोकेंट मींस द पोजीशन जो है आपकी इस ट्रिपल बॉन्ड की वो क्या है इस कार्बन चेन में, तो वी हैव टू गिव द नंबरिंग टू दिस कार्बन चेन बेटा, 1 एंड देन 2। सो वी कैन से जो आपकी 1993 की रिकमेंडेशन जो थी उसमें क्या था कि जो लोकेंट्स हैं, क्लियर, they must be placed immediately before the part of the name to which they relate beta. Now it's a but-2-ine। और बेटा नंबर को हमने जब अल्फाबेट से सेपरेट कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग हाइफन, वी आर यूजिंग डैश ओवर हियर, but-2-ine बेटा। ब्यूट-2 के बीच में हाइफन इज देयर और 2 और आइन के बीच में हाइफन इज देयर। ब्यूट और 2 के बीच में डैश इज देयर और 2 और वाई के बीच में डैश इज देयर बेटा। सो लेकिन पहले इसको हम कैसे लिखते थे बेटा, 2-butyne। सो ये जो 2 है दैट इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। ना बेटा अगर लोकेंट जो है फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको हम यूज ही नहीं करते अगर कोई वहां एम्बिग्यूटी नहीं है बेटा। द लोकेंट 1 इज ऑफन omitted when there is no ambiguity. For example बेटा, let's say this is the 1 2 3 carbon atoms are there, तो prop बेटा, देन प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा इसमें, एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, NH2 है तो अमाइन। सो इट्स अ prop प्लस एन प्लस अमाइन बेटा। सो ई वी हैव टू ड्रॉप ओवर हियर बेटा, सो इट्स अ प्रोपेनामाइन। ई क्यों ड्रॉप कर रहे हैं हम, बिकॉज जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द वॉवल दैट इज ओ ए, सो इट्स IUPAC नेम इज प्रोपेनामाइन। सो बेटा और क्या हो सकता था, प्रोपान 1 अमाइन, क्योंकि ई रिमूव किया, प्रॉप प्लस एन, AN प्रोपान, देन पोजीशन ऑफ दिस NH2 ग्रुप बेटा 1 एंड देन अमाइन। इज दैट क्लियर? लेकिन वी कैन सिंपली राइट इट प्रोपेनामाइन। ना बेटा प्रीफिक्सेस क्या रहते हैं, देयर आर योर 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, कि जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है बेटा दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक कंपाउंड्स फ्रॉम द असाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा। फॉर एग्जांपल जो आपके कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं बेटा, उन केसेस में हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा साइक्लो बिफोर द वर्ड रूट। लेट्स से दिस इज सम साइक्लिक कंपाउंड, इट्स अ बॉन्ड लाइन नोटेशन बेटा, एंड these are your carbon atoms beta. So this is hex, since it is a cyclic compound beta, तो जो आपका प्रीफिक्स रहेगा साइक्लो, देन वर्ड रूट इस केस में हेक्स बेटा, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज देयर एन,
then it's a cyclohexane. So this is a cyclo word is a primary prefix beta. So here beta जो cyclo है, this primary prefix that is indicating that this is a cyclic compound. This is a word root, this is a primary suffix, and this is a IUPAC named beta. Then if the prefix cyclo is not used beta, और अगर यहां cyclo prefix is not used, तो ये क्या इंडिकेट करेगा बेटा? इट इंडिकेट्स द कंपाउंड इज असाइक्लिक. नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स. बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में कुछ ग्रुप्स को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता. इंस्टेड दे आर ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स. और these are called secondary prefixes beta, and they are added before the word root in alphabetical order just to denote the side chain or substituent groups beta. आता है. अगर सिंपल में बात करें बेटा, जो भी आपका मेन या पेरेंट चेन के साथ जो भी आपकी साइड चेन्स हैं या जो भी आपके substituent groups हैं, they are written as the secondary prefix. Now beta, let's say बच्चों, we are having different substituent group and secondary prefixes. Let's say this of fluorine. Let's say कार्बन कार्बन की चेन के साथ फ्लोरीन is attached बेटा, then it's a fluoro. क्लोरीन के लिए बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रहेगा? क्लोरो. ब्रोमीन के लिए ब्रोमो. आयोडीन के लिए आयोडो. दिस इज नाइट्रो बेटा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रहेगा? नाइट्रो. दिस इज नाइट्रोसो, सो सेकेंडरी प्रीफिक्स इसके लिए क्या रहेगा? नाइट्रोसो. दिस एन ट्रिपल बॉन्ड एन बेटा, डाइजो. देन योर दिस इज योर ओ आर बेटा, दैट इज योर अल्कोक्सी. This is OCH3 methoxy. This is OCH2 CH3 beta, that is ethoxy. So CH3 that is a methyl. This is a propyl beta, rather normal propyl because एक चेन में है. Then your CH, इसी कार्बन के साथ CH3 है और एक और CH3 है बेटा, then that is a isopropyl. Now beta, these are the different secondary prefixes which are used for the different substituent groups. और बेटा इनके अलावा जो आपके दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन केस ऑफ योर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स. जैसे आपके कोई भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं, उनमें भी हम प्रायोरिटी देते हैं बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को. तो एक ही आपका क्या रहता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है. बाकी आपके क्या रहते हैं? बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, दे आर यूज्ड, दे आर रिटन एज द सेकेंडरी प्रीफिक्सेस. सो बेटा, जो आपका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट कंसिस्ट ऑफ योर वर्ड रूट, प्राइमरी suffix, and then the secondary suffix, then primary prefix, and then the secondary prefix. So beta, कोई भी organic compound है that will have these parts which we have just discussed one by one. Now beta, let's take the different organic compounds having different word roots and primary suffixes and then secondary prefix beta. Then what will be their IUPAC name? So let's take some examples. Now बेटा, दिस कार्बन का दो कार्बन एटम्स हैं, सो वर्ड रूट इज योर इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन. और बेटा यहां ब्रोमीन है तो दैट इज रिटन एज सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रोमो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन तो इट्स ब्रोमो इथेन. ना बेटा
नेक्स्ट इज दिस इज CH3NO2, यहां एक ही कार्बन है, वर्ड रूट इज मिथ, देन प्राइमरी सफिक्स इज एन बेटा, और जो आपका प्रीफिक्स रहेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट इज नाइट्रो, सो इट्स नाइट्रोमीथेन। नाउ दिस इज द C2H5OC2H5, इसमें बेटा ऑन वन साइड ऑफ योर दिस ऑक्शन वी हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन दोनों साइड बराबर ही कार्बन एटम्स हैं बेटा, तो वर्ड रूट यहां कह लेंगे हम इथ, देन बेटा एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन जो आपका प्रीफिक्स रहेगा सो बेटा ओ जो है दैट इज इथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, क्लियर, सो दिस इथॉक्सी इथेन। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन of the IUPAC nomenclature beta. Now beta, we are at this stage, we have discussed the different parts of the names of the organic compounds and those were your word roots. word root से पहले जो भी आपका ऐड होता है that is a prefix, और word root के बाद जो है आपके suffixes की हमने बात की बेटा। let's discuss these two terms because these were again discussed in the lecture. सो हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बेटा आर टर्म्ड सैचुरेटेड इफ दे कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बेटा दे आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें आपका एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, they are your unsaturated hydrocarbons, clear? So with this, thank you, hope you have enjoyed today's lecture. So beta, thank you, have a nice day.